خواتین و حضرات، ناظرین اور اس براڈ کاسٹ کے دوستوں، آج میں آپ کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے۔ خدا ہمارے لیے پہلے ہی بہترین تیار کر چکا ہے۔ اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ زبردست ہے۔ اس نے ہمارے لیے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ 2000 سال پہلے جب وہ صلیب پر چڑھا تو اس نے کہا تمام ہوا۔ اس نے ہمارے آسمانی باپ سے ہمارا ملاپ کروایا، عظیم خدا کے ساتھ، آسمان و زمین کے خالق خدا کے ساتھ، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور میرے ساتھ کروڑوں لوگ اس ایمان میں شامل ہیں۔ ہم سب کا مشترکہ نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ خدا تک جانے کا صحیح راستہ کیا ہے، جس میں سے ہمیں گزرنا چاہیے، اور ہم گزر سکتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہی ہم گزر چکے۔ بہت سے راستے ہیں، مگر حقیقی راستہ جو میں مانتا ہوں اور جو یسوع نے کہا کہ راہ میں ہوں، میں راہ ہوں، خدا تک جانے کا وہ واحد راستہ ہے، ہمارے آسمانی باپ تک۔ اور پولس بھی کہتا ہے کہ وہی واحد راستہ ہے۔ رسول اور نبی بھی یہی کہتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ یسوع ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم باپ کی حضوری میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارے مسیحی ایمان کا نچوڑ ہے۔ میرا ایمان ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ بات مانیں گے اور میرے ایمان میں شامل ہوں گے۔ مسیح یسوع پر ایمان کے وسیلے میں یہ کلام کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یسوع کے وسیلے جو کہ مسح کیا ہوا ہے، جو کہ مسح کیا ہوا ہے اور ہمارا مسیح ہے، جو کہ خدا کا مخصوص کیا ہوا ہے، ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ ہے وہ پیغام، خوشخبری ہے، خبر جو کہ خوش کن ہے۔ اس میں کیا خوشی کا پیغام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے وسیلے خدا کے پاس آتے ہیں۔ اب ہمیں مزید شریعت کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم بے گناہ زندگی گزاریں تاکہ اس کے پاس آ سکیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ یہ رفاقت اس لیے ہے کیونکہ خدا ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ رفاقت وہ ہمارے ساتھ مسیح مصلوب کے وسیلے رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ نعمت کے طور پر دیا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سادہ سا پیغام ہے جس کا پولس دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سارا خالص انجیلی پیغام ہے، اور ہمیں اس پیغام پر سختی سے کاربند ہونا ہے۔ ہمیں اس پیغام کا دعویٰ کرنا چاہیے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو یسوع ہم سے وعدہ کرتا ہے، پولس وعدہ کرتا ہے، پطرس وعدہ کرتا ہے، اور بہت سے دوسرے رسول بھی وعدہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامے کے رسول۔ اور میں اس میں اکیلا ہی نہیں ہوں، بلکہ میں اسے خدا کے خاندان کے ساتھ رفاقت کے طور پر حاصل کرتا ہوں، اور پھر بہت جلد میں باہر سے دیکھنے والوں میں نہیں رہتا، تو پھر ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اور صرف اسی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے
कि हम उसे बाप कहकर बुला सकें। जैसे यस्सु कहता है, खुदा हमारा बाप है जो हमारी मौजूदगी का खालिक है। हम उसे अब्बा कह सकते हैं, अजीज बाप, अब्बू, क्योंकि उसके साथ हमारा एक ताल्लुक है। ये बहुत करीबी रिश्ता है। आमतौर पर कह सकते हैं खून पानी से गाढ़ा होता है, क्योंकि उसके खानदान का रिश्ता आसानी से जुदा नहीं किया जा सकता। यस्सु ने हमारी खातिर कीमत अदा की है। ये रफाकत है कि खानदानी इत्तेहाद है। ये खानदान आसमानों और जमीन के खालिक खुदा से मुंसलिक है। उसी में, क्योंकि वो हमें अपने भाई कहकर बुलाता है। यस्सु पहलौठा है और हम उसके पैरोकार हैं। हम यकीन रखते हैं कि खुदा ने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया है। हम जो उस पर भरोसा रखते हैं जो यस्सु ने किया, वो उसके साथ शामिल होते हैं। उसके साथ ताल्लुक जबरदस्त एहसास है, और आप जानते हैं ये वो एहसास है जिससे हमारी जिंदगी बनती है कि खुदा हमारे साथ है। यूहन्ना इसे बेहतर तौर पर बयान करता है और कहता है, हमारे पास वो कलाम है जो दूसरों को नाकाबिले यकीन लगता है। यस्सु मसीह के साथ रफाकत, यस्सु ने जो हमारे लिए सलीब पर किया। हमारे पास खुदा है और वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है, वो हमें घेरे हुए है, वो हमारी हिफाजत करता है। और ये जबरदस्त है। और अगर आपको ये एतमाद है और खुदा पर भरोसा है, अगर आप हकीकत में उस पर भरोसा करते हैं, जो वो मसीह के वसीले हमें देता है, रसूलों के जरिए जो तूने मुझे बताया, मैं उस पर यकीन रखता हूं। और यकीनन हम इन बातों के गवाह हैं जो हमारे लिए वो करता है। और फिर उस तजर्बे की वजह से जो हम उसके साथ रखते हैं, और अपनी जिंदगी में हमें खुदा के तजर्बे की जरूरत है। अगर हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है तो फिर हम उसके साथ चीजों का तजर्बा करते हैं जो कोई हमसे ले नहीं सकता। लोग झगड़ा कर सकते हैं और जो कुछ वो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन हम जो खुदा के साथ तजर्बा रखते हैं, वो आपकी मदद करता है। वो आपकी मदद करना चाहता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो वो आपको मुश्किल से निकालेगा। ज़बूर का मुताला करें। वो जबरदस्त तजुर्बात थे जो दाऊद ने खुदा के साथ हासिल किए। ये हमेशा आसान न था। अगर आप दाऊद की जरूरतों और उस पर जो दबाव था उसको देखें, और कैसे खुदा ने उसे इन तमाम मुश्किलात में से बचाया। हकीकतन ये जबरदस्त है। हम मानते हैं कि हम आज भी वो तजुर्बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, बल्कि वो कल, आज और अब तक यकसां है।
हम ये इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं। उसकी तरफ से कोई तब्दीली नहीं। याकूब भी यही कहता है। वो हमेशा यकसा है, जैसा कि वो उस वक्त दाऊद के साथ और अयूब के साथ था, मूसा की मदद करता था, वो वैसे ही नए अहद नामे के ईमानदारों के साथ भी था, और वो आज भी वही काम करता है जो वो माजी में करता था। आपको बस उस पर ईमान लाना है, हमें खुदा पर ईमान रखना है। लेकिन कैसे? ये हम रोमियो के खत में पढ़ते हैं। वो उस पर कैसे ईमान रख सकते थे अगर कोई जमानत ना होती? ईमान खुदा का कलाम सुनने से पैदा होता है, और खुदा का कलाम खुदा के खादम के जरिए हम तक आता है। अगर हम खुदा के कलाम को हकीकत में बयान नहीं करते तो लोग हकीकी ईमान नहीं ला सकते, क्योंकि हर कोई खुदा के कलाम का सामना नहीं कर सकता जैसे शायद हम करते हैं। और फिर हमें जानना है कि इब्लीस और इब्लीस के साथी भी कलीसिया के अंदर घुस आए हैं। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, वो अहमकों को धोखा नहीं देते। हम सोचते हैं, मैंने कई बार सुना है, मैं सोचता हूं माजी में, आगाज में, कि ऐसा आखिर क्यों कहा गया है जब खुदा की बात हो, रूहुल कुद्स की बात हो, तो मैं सोचता हूं कि ये बातें खुदा के कलाम से मुताबिकत क्यों नहीं रखती, और खुदा कैसे मुझ पर अपने आप को जाहिर करता है कलाम के जरिए। लेकिन खुदा के कलाम के जरिए मैं तजर्बा करता हूं। हमें खबरदार रहना है। खतूत में देखें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें खुदा के लोग होते हुए शुरू से आखिर तक सामना करना पड़ता है। अगर हम इस दुनिया में आदमी की सूरत में पैदा हुए हैं तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। मेरी सोच के मुताबिक हम इस लड़ाई में शामिल हैं। ये लड़ाई हमारी रूहों से मुताल्लिक है, हमारी रूहों की निजात के लिए है, अब्दी जिंदगी के लिए। अब ये सादा सी बात है, सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब्दियत कहां गुजारूंगा? वो कैसा होगा? मेरे साथ निकालें फिलिपियों के नाम खत, 3 बाब, और पहली आयत से शुरू करते हैं। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। पौलुस के मुताबिक दोहराना अच्छा है, क्योंकि चीजों को बार बार दोहराने से ये हमें याद रहती हैं, ये हमारे साथ रहती हैं, और हम इन चीजों को आसानी से याद रखते हैं। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो,
कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो अब, देखें, हम मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं, हम खुदा में खुश होते हैं। मसीह के वसीले, यस्सु के वसीले हमारे पास खुदा है। अब वो पहले खतने का कहते हैं, क्या खतना काफी है? क्या खतना वाकई काफी है? हम इस तरह के मसाइल देखते हैं किसी भी किस्म के खतने के हवाले से, मजहबी अमाल के हवाले से, जिनके बायस उनके मुताबिक हम खुदा की कबूलियत हासिल कर सकते हैं। इनसे खुदा को फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि इसमें खुदा की खुशनोदी है या फिर ये रूहानी अमल है, लेकिन बिलाखिर हम इन तमाम कामों के वसीले खुदा के पास नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ जाहिर के काम हैं। गुज़श्ता हफ्तों के पैगामात पर गौर करें। अगर आपका किसी शख्स के साथ ताल्लुक हो तो वो कैसा होगा जब आप खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बाहर खड़े होकर नहीं जानते। ये फर्क बात है। मसीह में हम खुदा में खुश होते हैं। यस्सु खुदा का कामिल कुर्बानी का बर्रा है हमारे गुनाहों के कफारे के लिए। क्योंकि हमारे गुनाहों का हम नहीं जानते कि कैसे सामना करें। उसने हमारा तमाम एहसास जुर्म अपने ऊपर ले लिया है। उसने हमारा तमाम एहसास जुर्म अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से हम सजा के हकदार थे। क्योंकि हम बुराई में रहकर अच्छाई को नहीं जान पाते। इसकी जरूरत नहीं कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है। मैं खुद जानता हूं क्या सही है, क्या गलत है। मैं खुद पर भरोसा करता हूं और इस खुद इन्हिसारी में गलतियां होती हैं। उन गलतियों के लिए जो हम अपनी खुद इन्हिसारी में करते हैं, हमें जवाब देना होगा। और वो दिन अदालत का दिन होगा और हमें हिसाब देना होगा। यही हमारा ईमान है। ये मसीही ईमान का निचोड़ है। और कुत्ते और बदकार हमें बांधना चाहते हैं और हमारे ईमान के वसीले से जो हम मसीह यस्सु पर रखते हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। निजात का गहरा शऊर, खुदा के साथ अपने ताल्लुक का इल्म, खुदा के खानदान के साथ अपने ताल्लुक का इल्म, वो हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमसे कामिल यकीन छीन लेने के जरिए। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं,
पौलुस अपनी बात करता है, अगर किसी और को जिस्म का भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। पौलुस कहता है, अगर किसी को ये हो कि मैं अच्छे काम करता हूं, शरीयत पर अमल करता हूं, वो किसी भी मजहब के मुतालिक हो, तो मैं किसी भी दूसरे से ज्यादा करता हूं। अगर कोई भी अपने जिस्म पर भरोसा करता है तो मुझे उससे ज्यादा है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। क्यों? ये उसके लिए नुकसान है, क्योंकि अगर वो ये तमाम काम करता है और उसके पास मसीह नहीं है, तो फिर वो मुखालिफे मसीह है। वो खुद अपने आप को बचाएगा। मैं खुद रिहाई पाने वाला हूं। और क्योंकि वो जान गया था, वो ये बात समझ गया था कि वो किसी भी तरह खुद को अपने तौर पर बचा नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं। वो कहता है कि फिर मेरे लिए ये तमाम चीजें बेमानी हैं। मसीह की खातिर ये दरअसल तबाहकुन है। अगर आप इन पर भरोसा करते हैं तो फिर ये आपको तकलीफ पहुंचाने का बायस होंगी। वो कहता है कि वो ये तमाम काम किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा कर चुका है, और वो कहता है, मैं इन पर भरोसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं मसीह पर भरोसा करूंगा और उस मखलसी पर जो मसीह के जरिए मुझे मिली है। मैं उस फजल पर भरोसा करूंगा जो खुदा मुझे देता है। वो कहता है, वो यहां पर यूं कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। एक तरफ तो अपनी कामयाबियों पर फख्र हो और दूसरी तरफ कहें, खुदा हम गुनाहगारों पर रहम करे। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि या तो हम उसके हजूर कुछ लाएंगे या हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। या मैं खुदा का फजल हासिल करूंगा या मुझे कुछ छोड़ना होगा। या ये होगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, शाबाश, तुम हकीकत में रास्तबाज हो, बे इल्जाम और बगैर किसी दाग के। और कोई आदमी हमारे बारे में ये नहीं कह सकता जो कि सिर्फ जाहिरी तौर पर देखता है, लेकिन खुदा कह सकता है जो हमारे मुतालिक सब कुछ जानता है, जो कि कामिल, बेदाग और बेऐब है, जिसने कभी कोई गलत काम ना किया। पौलुस ने जान लिया कि ये मेरे लिए सही नहीं। मैंने सब कुछ आजमाया, सब कुछ किया है, लेकिन मैंने जाना कि इसमें मेरा कोई भला नहीं।
واحد چیز جس میں میرا نفع ہے وہ میرے لیے خدا کا رحم ہے۔ خدا میری غلطیاں معاف کر سکتا ہے جو میں نے غفلت میں کی، اور اپنی خود انحصاری میں کی، اور وہ ہمارے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ پھر ہم خدا کے ساتھ اس کی نعمت کے طور پر رفاقت پاتا ہوں۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ مسیح ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص اسے نجات دے جو مخالف مسیح ہو، جو مسیح کا دشمن ہو۔ میں مسیح کے بغیر خود کو بچا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسیح کو زیادہ سمجھنا اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک طرف تو کہیں کہ میں خود کو بچا سکتا ہوں اور دوسری طرف کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسیح میری زندگی میں آئے۔ صرف خدا کے فضل سے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ اب پروگرام کے آخر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگر آپ خداوند یسوع کو نہیں جانتے اور آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے اور میرے گناہوں کے لیے صلیبی موت سہی۔ تو نے ہر کمزوری، ہر بیماری اور ہر لعنت اپنے اوپر لے لی۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور التجا کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر، میرا جرم معاف فرما۔ میں ان کو معاف کرتا ہوں جو میرے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ میں یسوع کے نام میں مانگتا ہوں اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ بہت سادہ ہے، یہ بہت سادہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی خدا کو سونپ دیں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کام ممکن ہے۔ کہیں مجھے معاف فرما، میرے گناہ معاف کر۔ یہ حقیقی اور واحد راستہ ہے۔ اگر ہم کلام پر ایمان لائیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں کہا، مسیح خدا میں ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، مجھے خوشی ہوگی۔